আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৌ মাতা সেৱা মহাসংঘৰ আজি অধিৱেশন আছিল হোজাইত গীতাশ্ৰমত। মই এজ এ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট নিযুক্তি হৈছোঁ আৰু আমাৰ এইটো আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ 4টা এজেণ্ডা আছে। প্ৰথম কথা হ'ল দেশী গাইৰ পালন হ'ব লাগে। দেশী গাইৰ বহুত আমাৰ উপকাৰ বস্তু আমি পাওঁ। দেশী গাই গৰুৰ পৰা তাৰ গাখীৰ জাৰ্চি গাইতকৈ বহুত ভাল। 2 নম্বৰ, গৌ কাটা বন্ধ হ'ব লাগে। 3 নম্বৰ হ'ল আমাৰ গৌমূত্ৰ, যিটো আজিকালি চাইণ্টিফিকেলিও প্ৰুভ যে এইটোৰ বহুত উপকাৰিতা আছে। ইমিউনিটি বুষ্টাৰ, কেঞ্চাৰৰ ৰোগো এইটোত ভাল হয়। আৰু গৰুৰ গোবৰ দি আমি নানা ধৰণৰ আমি বস্তু কৰিব পাৰোঁ। গোবৰ গেছ কৰিব পাৰোঁ, গৰুৰ গোবৰৰ ইটা বনাব পাৰোঁ, আমি বনাব পাৰোঁ, আগৰবাতি বনাব পাৰোঁ। সেইটোৱে আমাৰ এজেণ্ডা। আৰু আজি এটা সৰু পদক্ষেপ, আমি এইটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত, সৰু সৰু জেগাত আমি লৈ যাব, একদম গাঁৱে গাঁৱে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক চবেই আহি যোগদান কৰক। আমাৰ মিছন সাকসেস হ'ব লাগে। আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ যে ডক্টৰ দীনেশ উপাধ্যায়জী, তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেয়াৰমেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৌ মাতা সুৰক্ষা মহাসংঘৰ তেওঁ চেয়াৰমেন হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেয়াৰমেন, তেখেত আহিছে। আৰু আমাৰ ডক্টৰ মিষ্টাৰ প্ৰভাত চন্দ তাৰোজী, এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ কাৰ্বি আংলং, তেখেত ৰেভিনিউ বিভাগৰ আছে, দায়িত্বত আছে, ফৰেষ্টৰো আছে, তেখেত আছে আমাৰ দায়িত্বত। আৰু আমাৰ আছে ডক্টৰ মিষ্টাৰ কি নাম তাৰ ৰদীপ ৰংহাংজী আছে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ, তেওঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। দেখা গৈছে যে আপোনালোকে গৌ হত্যা ৰোধ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু গৌ হত্যা এতিয়ালৈকে কিন্তু পুনৰাই চলি আছে। নাই, শুনক, আমি বেলেগ বাহিনী, আমি হিংস্ৰ নহয়। আমি কাকো গৈ এই মাৰধৰ কৰা, গুলি মাৰা, কিবা কৰা সেইবিলাক নকৰোঁ। আমাৰ কাম হওক শান্তিভাৱে আমি অহিংসা হিচাপে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম। আমি আমাৰ প্ৰশাসনক আমি জনাম এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি। প্ৰশাসনে কি লয়, কি ষ্টেপ লয়, তেখেতৰ কথা, তেওঁলোকৰ কথা। আমাৰ তাত গৈ ডাইৰেক্ট কোনো ভূমিকা নাথাকিব। আপোনালোকৰ এই সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গৌ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? আমি জনাম যে গৌ হত্যাটো বন্ধ হ'ব লাগে, দেশী গাইৰ পালন হ'ব লাগে, সেইটোৱে আমি ক'ম। লিখিত হিচাপে আমি জনাম। লিখিত হিচাপে আমি CM, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়, সব জেগাতে আমি দিম যদি এনেকুৱা কিবা ঘটনা পাইছোঁ, যদি আমাৰ নলেজত আহে। माता सेवा महासंघ का एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ ने आसाम प्रांत का सभापति डॉक्टर सुमित कुमार जी को नियुक्त किया है, मनोनीत किया है। और प्रभात चंद तारो जी कार्बी आंगलोंग के ऑटोनोमस बॉडी के मेंबर है, चुनाव जीत के गए, आज आए हैं। और पूजा डे जी महिलाओं की आसाम प्रांत की अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदीप रोंगांग जी वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले के भारतीय जनता पार्टी के सभापति रहे हैं, आज ये भी मंच के ऊपर हैं। और विषय एकदम सीधा है, गाय माता को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए किया जाए कि गाय मात्र एक पशु ही नहीं है। गाय को हम लोग अपनी माता मानते हैं, लेकिन गाय की एक इंडस्ट्री के रूप में बनाया जाए। काऊ डंक, काऊ यूरिन को एक बड़े स्तर पे हम लोग इंडस्ट्री के रूप में बनाए। जैसे गाय के गोबर का पेंट बनने लगी, नहाने की साबुन बनने लगी, धूपबत्ती बनने लगी, अगरबत्ती बनने लगी, मकान बनाने की ईंटें बनने लगी, लक्ष्मी गणेश के चित्र बनने लगी, मालाएं बनने लगी, और हवन के अंदर जो सामग्री डाली जाती है वो बनने लगी, और लकड़ियाँ भी बनने लगी। इतना सारा काऊ डंक का सामान बन रहे हैं। और भारत सरकार भी उसमें मदद करती है। लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है कि जो सरकार की योजनाएं हैं निचले स्तर पे आकर के दूर दृष्टि तक, अंत्योदय तक वो बात पहुंचाई जाए। उससे हम लोग सामाजिक समरसता का ध्यान रखें, सामाजिक सद्भाव का ध्यान रखें, कुटुंब प्रबोधन का ध्यान रखें, संस्कार का ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में और अपने प्रभात जी के नेतृत्व में, सभी लोगों के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति को गाय का बारे में समझाना कि गाय क्या है।
गाय मात्र सिर्फ धर्म के साथ जोड़ के नहीं चल सकते कि गाय सनातन या हिंदू, वो एक है, मैं मानता हूँ बात को, लेकिन गाय को अगर कोई अन्य धर्मों को मानने वाला व्यक्ति भी पाल करके दूध पीता है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए गाय के गोबर को कहीं हमें आग लगा के उसमें हल्की सी उसका धुआं पूरे घर में रखेंगे तो सारे वायरस को समाप्त कर देता है, बैक्टीरिया का नाश कर देता है, रोगी को उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही गौमूत्र का है, गौमूत्र भी इम्यूनिटी बूस्टर है, काफ़ी प्रकार के रोगों को ख़त्म कर सकता है या काफ़ी प्रकार के रोगों को आने से रोक सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर, ऐसे गाय के देसी घी का मसला है, गाय के देसी दूध का मसला है, ये सारा बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। गौ के पालन से हॉस्पिटल की जो मरीजों की भीड़ है उस संख्या में कमी लाई जा सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा विषय ये भी है कि जर्सी गाय और देसी गाय, जर्सी गाय का दूध राष्ट्र के अंदर नुकसान का कारण बन रहा है। जर्सी गाय का दूध पीना नहीं चाहिए, जर्सी गाय का गौमूत्र को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जर्सी गाय घर में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जर्सी गाय क्यों पाली जाती है? दूध ज़्यादा देती है, ज़्यादा पैसा आता है। जर्सी गाय राष्ट्र के ऊपर उसी प्रकार का एक हमला है जैसे मैकाले ने शिक्षा पद्धति के ऊपर हमारा हमला किया था और अपनी शिक्षा पद्धति थोप दी थी। हमारा वनौषधि, औषधीय, कल्चर, संस्कार, ये सब चीज़ें करने के लिए आज एक बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। पूरे आसाम के अंदर हम लोग सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त करें, जिला सभापति नियुक्त करेंगे। हमने नेपाल में, हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, भारत के 20 से 22 राज्यों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं। इसलिए गाय को दूर तक लेकर के जाना और लोगों को समझाना जर्सी गाय आए क्यों और देसी गाय क्यों आना चाहिए, इस तरह को लेकर के बड़ा कार्यक्रम किया गया है। और इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत भव्य तरह से आयोजन किया है। आप सभी का भी आभार है। बस आप रिक्वेस्ट इतना ही है कि देसी गाय, लोकल गाय, चाहे वो हरियाणा की है, पंजाब की है, बिहार की है, कार्बी आंगलोंग की है, आसाम की किसी की भी है, लेकिन लोकल गाय का संवर्धन, लोकल गाय का संरक्षण, लोकल गाय का पालन राष्ट्र के अंदर होना ही चाहिए। और जिस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माताएं बहनें ये काम करना शुरू कर देंगी तो राष्ट्र के अंदर बहुत भारी परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा बोले कि ऐसा गाय के से ऐसा कुछ इंडस्ट्री बन सकता है, तो होजाई में भी ऐसा कुछ इंडस्ट्री बनने के प्रयास में है क्या? आज प्रभात चंद्र जी ने मंच के ऊपर एक घोषणा की है कि हम लोग जमीन, माटी देने के लिए तैयार है। संगठन के पास यहाँ माटी नहीं है। हम लोग सरकार से माटी लेने के लिए एक एप्लीकेशन देंगे। वही प्रभात चंद्र ने कहा है कि अध्यक्ष जी जो सभापति हैं एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट को देंगे तो हम लोग मदद करेंगे। इनको माटी, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ को हम लोग इतनी माटी दे देंगे ताकि गौ की फैक्ट्री लग सके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए और बड़ा रोजगार खड़ा हो जाएगा। और उसके साथ साथ शुद्ध चीज़ सही रेट में पब्लिक तक पहुँच जाए, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाए।